Hello, my dear friends. Myself, Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri, and my coaching classes is Qadri Coaching Classes. With the help of my YouTube channel, I have already discussed to the part 1. This is a very important point for the class 11th and 12th students, and absolutely this is important for class 9th. So my dear friends, I have already been told to you body fluid and circulation. What are a body fluid and circulation? You have already I have given to lecture in our previous YouTube episode. So I am explaining to different types of modes of bloods. How many types of blood groups? Blood group A, blood group B, blood group AB, and blood group O. How many types? 4 types of blood group. Blood group A, blood group B, blood group AB, and blood group O. My dear friend, blood group AB is the all receptor because of there is no antigen and antibody. Blood group O is all donor. All donor. It means within the case of blood group AB, the simple points antigen and antibody are present, but in the case of blood group O, antigen and antibody are absent. So my dear friends, within the case of blood group AB, A and B, small a and B, this one is the antigen and antibody, and blood group O, there is no antigen and antibody. So my dear friends, within this case, already you have to know blood group are divided into 4 parts: A, B, AB and O. O is the all donor and AB is the all receptors. And what is the blood? What are a blood? What is the function of blood? Blood is also maintain our body temperature. It also be carried to oxygen in whole lower part of the body. Because of we are taking the maximum food materials, and these oxygen molecules have completely combusted to in these types of organic material. For just like glucose, fructose, mannose, sucrose is completely combused with the help of only oxygen, and oxygen comes up only our blood corpuscles. Within this blood corpuscles, a heme is a colored pigment. And globulin is a protein. Globulin is the protein. Since hemoglobin, heme is a colored particle and globulin is a protein. Since hemoglobin is a colored protein molecules. Colored protein molecules. Simply this one is carried out to the single molecule of a heme is captured to the 4 molecule of oxygen. How many molecules? 4 molecules of oxygen. So in these cases, you have already know the majority of oxygen is carried by the RBC and it transported in whole or part of the body. जो हमारे बॉडी के विभिन्न पार्टों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है. तो मैंने माय डियर फ्रेंड्स ये आपको बताया कि ये ब्लड है, और ब्लड का मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करने चल रहा हूं जिसका शीर्षक है, जिसका उन्वान है लिम्ब. व्हाट इज लिम्ब? सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कॉल मी, सर प्लीज one time explain the plasma. What is the plasma?
So many students have called me. So my dear friends, today our lecture is coming on or going on in a plasma. So what is a plasma? And what are the use of plasma? प्लाज्मा क्या है? कई बच्चों ने मुझसे इस तरह के क्वेश्चन एराइज किया, पूछा है, तो आज मैं आपको प्लाज्मा के विषय में बता रहा हूं। दिस वन इज द प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दिस इज ए बॉडी फ्लूइड। प्लाज्मा इज ए बॉडी फ्लूइड सर्कुलेटिंग सिस्टम, a body fluid. So my dear friend, if this one is body fluid, what is the work? What is the work of this plasma? According to this view, we are discussing here today what is the plasma. My dear friend, simply plasma, their color is light yellow, हल्के पीले रंग का यह एक विशेष प्रकार का अंतरकोशिकीय द्रव होता है। इंटरसेलुलर जो है फ्लूइड होता है, अंतरकोशिकीय द्रव होता है। यह ब्लड का एक मैट्रिक्स मटेरियल है, आधारभूत पदार्थ है। क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा ब्लड का एक आधारभूत पदार्थ है। अगर ये आधारभूत पदार्थ है तो करता क्या है ये इसमें लगभग रुधिर का 55% भाग या ब्लड का लगभग 55% पार्ट बनाता है। कितना बनाता है? 55% पार्ट बनाता है। अगर ये ब्लड का 55% पार्ट बनाता है तो सिंपली वी हैव टोल्ड यू दिस वन इज नॉट बी ए सिंपल टाइप्स ऑफ ए लिक्विड, ए कोलाइडल मिक्सचर। प्लाज्मा इज ए कोलाइडल मिक्सचर, यह एक जटिल कोलाइडी मिश्रण होता है। प्लाज्मा क्या है? एक जटिल कोलाइडी मिश्रण है, जो मैंने बताया आपको कि यह अंतरकोश की अवकाशों में पाया जाता है, और जहां पाया जाता, जिसमें पाया जा रहा है उसको मटेरियल का नाम जो मैंने मैट्रिक्स में पाया जा रहा है, और इसके फंक्शन को मैंने क्रिएट किया। इसमें आप देख सकते हैं 92% इसमें वाटर होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 7 to 8% ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ओनली 1% salt and other types of materials होते हैं, salt and other types of materials होते हैं। So my dear friends, first of all we are giving to a simple points in front of you. Here we have write a few different points. Vascular tissue I divide into two parts. One is the blood, second is the lymph. Blood and lymph ये दो पार्ट होते हैं। And plasma, a type of liquid. Plasma is a type of liquid. Which type of liquid? There is a very light yellow color liquid. What is this? Very light color yellow liquid. Those who are simply occur in intercellular spaces, those spaces is simply find out in our matrix, जो हमारे मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा जरा सा आप लोग, ये प्लाज्मा हो गया, लाइट येलो कलर मैंने बताया आपको। प्लाज्मा के पार्ट क्या क्या है? फाइब्रिनोजन, पहला पार्ट क्या मैंने लिया? फाइब्रिनोजन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड सीरम एल्बुमिन। माय डियर फ्रेंड, फाइब्रिनोजन, दिस वन इज अ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर। आपको चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है, ब्लड क्लॉट करता है, जम जाता है, जमने के बाद उसे आप ट्रेस करते हैं, हटाते हैं, तो उसके ऊपर आप येलो कलर का फ्लूइड देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो आप येलो कलर का फ्लूइड देख रहे हैं वही फ्लूइड क्या है? वो प्लाज्मा है, उसी का नाम दिया गया, ये प्लाज्मा है। और सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। माय डियर फ्रेंड, देयर इज द परसेंटेज ऑफ वेरी नॉर्मल 0.3%, 0.3%, but their work are very high. When any persons are accident, the majority of bloods
exist outside of the body. Maximum amount of blood to exist of the body. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी से उसके एग्जिस्ट हो रहा है। ऐसे कंडीशन में प्लाज्मा जो है प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये ब्लड को कोआगुलेट कर देता है, स्कंदित कर देता है, जमा देता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्लाइमेटिक ऑक्सीजन। क्लाइमेटिक ऑक्सीजन के से रिएक्ट करके उस ब्लड को क्या करता है, कोआगुलेट कर देता है, स्कंदित कर देता है, जमा देता है। एंड थर्ड पार्ट सीरम एल्ब्यूमिन, ये सीरम एल्ब्यूमिन पार्ट होता है। यहां भी मैंने बताया आपको सीरम एल्ब्यूमिन के विषय में। जो सीरम एल्ब्यूमिन है इसमें भी विशेष प्रकार के ये प्रोटीनस मॉलिक्यूल, एल्ब्यूमिन प्रोटीनस मॉलिक्यूल, those who have provide to the energy of the body. And here nutrients, what types of nutrients are simply occur in the plasma? A question arises in front of you. What types of nutrients are simply present in the plasma? Glucose, fatty acid, glycerol, amino acid. So many types of others. Glucose, fatty acid, glycerol and amino acid. This one is simply find out. My dear friend, you have already we know there are two types of sugars are simply occur in human body. And their percentage are increases, so they have so to the very harmful effect in our body, and humans are simply be suffering from sugar disease, diabetes disease. My dear friend, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको बताना चाह रहा हूं कि ये शुगर का मॉलिक्यूल यदि हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा होता तब है जब हमारा पैंक्रियाज इस शुगर मॉलिक्यूल को कंप्लीटली इंसुलिन, उससे जो हार्मोन निकल रहा है पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन, यही हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर से ग्लूकोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अगर पैंक्रियाज डैमेज हो गया, ग्लैंड डैमेज हो गई, तो उससे निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन यह बॉडी में नहीं सिक्रीट हो पाएगा। और जब इंसुलिन बॉडी में नहीं सिक्रीट हो पाएगा माय डियर फ्रेंड, तो क्या होगा? अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं सिक्रीट हो पा रहा है तो ये बॉडी में ग्लूकोज का परसेंटेज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमको यह जान लेना है कि कहां बढ़ेगा। तो इसके बढ़ने के दो ही प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस यह है कि ये ब्लड में बढ़ेगा, और सेकंड प्रोसेस अगर ब्लड में मैक्सिमम हो गया तो यूरिन के थ्रू ये पास होना शुरू करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, दोज पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ऐसे व्यक्ति जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, अगर उनके यूरिन से ब्लड जा रहा है तो उन्हें यह मान लेना चाहिए कि उनके ब्लड में शुगर है, अर्थात उनमें दोनों शुगर पाए जाते हैं। ब्लड का शुगर पाया जाता है, सेकंड यूरिन। पहले ब्लड का शुगर होता है, फिर यूरिन का शुगर होता है। ब्लड के शुगर में आइए हम आपको बताते हैं। ब्लड शुगर का सिंपल रेशियो टू पर 100 ml 80 to 120%, 80 to 120% blood sugar is a normal ratio. Those are simply present in our blood. इससे ज्यादा अगर परसेंटेज हो गया तो ब्लड प्यूरिफाइड होने के बाद शुगर मॉलिक्यूल को यूरिन में भेज देता है। पारानिस्यंदन क्रिया के परिणाम स्वरूप, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के परिणाम स्वरूप ये ब्लड यूरिन में भेज दिए जाएंगे। जब ये ब्लड यूरिन में चला जाता है तो यूरिन क्या करता है, इसको एग्जर्ट करता है। जब यूरिन से शुगर एग्जर्ट होने लगता है तब ह्यूमन बींग्स को पता चलता है कि उसके बॉडी में शुगर हो गया। क्योंकि शुगर के पर्सन्स जो होते हैं उनके बॉडी के अंदर चिड़चिड़ापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और पॉलीयूरियानी की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द मेन फीचर एंड मेन सिम्टम, पॉलीयूरियानी। यू नो पॉलीयूरियानी? व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ पॉलीयूरियानी? बहुमूत्रता। कई बार उन्हें यूरिन जाना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरह से उनके अंदर ये डिजीज कॉज कर रही है तो इसका मतलब यह हो गया कि उनके पैंक्रियाज डैमेज हो गए, पैंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन डैमेज हो गया। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी ग्लैंड डैमेज हो जा रही है, वर्कलेस हो जा रही है,
फिर से उसे एक्टिव नहीं किया जा सकता। सो इन दिस केस यदि पैंक्रियाज डैमेज हो गया, आप नया पैंक्रियाज उसमें जो है ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। नया पैंक्रियाज आप उसमें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अब आपको क्या करना है? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको सावधानी बरतनी है। स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है? सावधानी बरतनी है। कैसी सावधानी? ऐसी सावधानी आप बरतेंगे जिसमें से ज्यादा मात्रा में वो ग्लूकोज ना हो। यदि उसके ऐसे फूड मटेरियल को आप खा रहे हो, ले रहे हो, तो आप इसे लेना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि ऐसे फूड मटेरियल आपके बॉडी में जब जाएंगे तो उनमें बॉडी में उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। और बाहर तो निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट भी शो कर रहे हैं। सो ऐसी कंडीशन में आदमी को चाहिए कि अपने बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये सिंपल मेथड मैंने जो भी आपको बताया ये प्लाज्मा का है। और अब आप देखिएगा प्लाज्मा के विषय में मैंने ढेर सारी थीसिस को इकट्ठा कर रखा है और इन थीसिस के विषय में आपको बताना चाहूंगा। इस प्लाज्मा के विषय में जो साल्ट होता है, अभी देखते हैं कि इसमें जो साल्ट होते हैं, साल्ट लवण जिसको बोला गया, साल्ट का परसेंटेज 0.9 से लेकर के 1% साल्ट होता है। 0.9 से लेकर के 1% साल्ट होता है प्लाज्मा में। 0.9 से लेकर के 1% साल्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल होते हैं उनमें मुख्य रूप से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ये उसके मटेरियल होते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पर हीमोग्लोबिन का एक फार्मूला लिखा है, जरा सा ध्यान देंगे, मैं पढ़ भी रहा हूं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा इसको। इस फार्मूले मैंने स्पष्ट क्लियर कर दिया है। कार्बन 3032, कार्बन 3032 है, 3032 हीमोग्लोबिन, हीम नाम का रंगा पदार्थ, हीमोग्लोबिन कार्बन 3032, हाइड्रोजन 4816, हाइड्रोजन 4816, नाइट्रोजन 780 एंड सल्फर 8, आयरन 4। तो how many elements are combined here? 5 elements. Give the name: carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and iron. ये आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला मटेरियल है, जिसका फार्मूला सभी लोग याद कर लें। इसमें मैंने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन ये 4 है। आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ बुक्स के जो है प्रोसेस दिखाए थे, जो है प्राची पब्लिकेशन के। और ये बुक्स ऐसी हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड के एग्जामिनेशन के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा इनसे बेनिफिट लेना है और मिलेगा। और मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अपना क्वेश्चन पेपर सारे बच्चों को डिलीवर करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन पेपर आप सभी को डिलीवर करना, ये मेरी लायबिलिटी है, मैं डिलीवर करूंगा आप लोगों को। लेकिन पहले आप लोग इसको प्रिपेयर करिए। यदि आप लोग इसको प्रिपेयर करते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ स्पीच दिया जा रहा है, अधिकतम स्पीच दी जा रही है, मेजॉरिटी ऑफ स्पीच दी जा रही है। और ऐसी कंडीशन जहां पर मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज दी जा रही है, ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्या क्या कंडीशन डेवलप होंगी। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको फिर आगे ले चलता हूं। यहां पर मैंने बताया अभी आपको कि इसका पीएच मान भी ब्लड से कम होता है और जो आसानी पूर्वक ऑस्मो रेगुलेशन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। आगे मैं बताना चाहूंगा व्हाट इज द वर्क ऑफ
blood plasma. Function of blood plasma. What is the work of blood plasma or function of blood plasma? My dear friend, क्या क्या फंक्शन होते हैं या पोषक पदार्थों में? हार्मोन, एंजाइम, हार्मोन भी ध्यान रखिएगा, हार्मोन, एंजाइम एंड अदर एक्सक्रीटिंग मटेरियल, ये आज का जितने भी एक्सक्रीटिंग मटेरियल इन सभी का जो परिवहन करता है। प्रोटीन, ध्यान से सुनिएगा, हार्मोन, एंजाइम और अदर एक्सक्रीटिंग मटेरियल, हार्मोन, एंजाइम एंड अदर एक्सक्रीटिंग मटेरियल को ये बॉडी से एग्जिस्ट करने का वर्क करता है। कौन वर्क करता है? प्लाज्मा वर्क करता है। सेकंड वर्क में आइए नोट करते हैं, चोट लगने पर यह प्रोथ्रम्बिन के हेल्प से आपके बॉडी में आसानी पूर्वक ब्लड को कोआगुलेट कर देता है, स्कंदित कर देता है, थक्का जमा देता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये ब्लड को कोआगुलेट कर दे रहा है, स्कंदित कर दे रहा है, थक्का जमा दे रहा है, तो ये ब्लड का निकलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, विद इन द केस ऑफ एक्सीडेंट के समय अगर बॉडी में प्रोथ्रम्बिन है तो यह ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी से ब्लड को निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लड को निकलने को, जैसे ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा उसी समय ये क्या करता है कि ब्लड को कोआगुलेट कर देता है, स्कंदित कर देता है। और जब ब्लड का कोआगुलेशन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन जब ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि उसका बहाव रुक जाएगा। वह रीजन किसका मैंने बताया? प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन का होता है। फाइब्रिनोजन वन टाइप्स ऑफ ए नेट, एक विशेष प्रकार की जाल है। यह एक विशेष प्रकार की जाल है जो फाइब्रस है और ये पूरी तरह से कवर अप करती है जहां पर चोट लगता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है? प्रोथ्रम्बिन क्या करता है? प्रोथ्रम्बिन 0.3% में ही है, फिर भी इसका फंक्शन है कि ब्लड को क्या करता है? स्कंदित कर देता है, थक्का जमा देता है। जब ब्लड थक्का जमा लेगा, क्लॉट कर जाएगा, तो ब्लड के क्लॉट कर जाने के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि ब्लड का निकलना बॉडी से बंद हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि अगर ब्लड का निकलना यहां पर बंद हो गया है, फिर कौन सी एक्टिविटी चलेगी? तो यह ब्लड को निकलने से रोक देता है, अर्थात आपके बॉडी में पावर ऑफ इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है। क्या करता है? बॉडी में पावर ऑफ इम्यूनिटी को मेंटेन, माने सीरम का फंक्शन होता है। जो आपने देखा प्लाज्मा, इसका मेन फंक्शन होता है दे हैव प्रोवाइड टू द पावर ऑफ इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में पावर ऑफ इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हमारे बॉडी में पावर ऑफ इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? ये बढ़ाता है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज कर दिया तो सिंपल सा पॉइंट है, देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैव इफेक्टेड टू आवर बॉडी। सो माय डियर फ्रेंड्स, this is the very important and very interesting topics of the of the plasma. Those where simply we helps in a coagulation of blood, they have maintain our power of immunity. Note कर जाए, they have maintain our power of immunity. They have simply we maintain our pH value. What types of pH value? Those pH are already be seen in the blood and other liquids, just like the plasma or lymph. इनके pH को नियंत्रित किए हुए होता है, कंट्रोल किए हुए होता है। pH वैल्यू को ना तो इंक्रीज करने देगा ना ही डिक्रीज करने, मेंटेन करके रखता है बॉडी में। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये pH वैल्यू बॉडी में मेंटेन है तो किसी प्रकार की कोई डिजीज आपके बॉडी में इफेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन, बॉडी में ये ब्लड के वाटर सर्कुलेशन पावर को मेंटेन रखता है। बॉडी में वाटर सर्कुलेशन पावर को मेंटेन रखता है।
जल सर्कुलेटिंग सिस्टम, वाटर सर्कुलेटिंग पावर है, उसको क्या करता है, जल का संतुलन, वाटर बैलेंस बॉडी में मेंटेन रखता है, वाटर बैलेंस को बॉडी में मेंटेन रखता है। यूरिक एसिड, और ध्यान से सुनिएगा, यूरिक एसिड है, नाइट्रोजनिक मटेरियल है, ऐसे पदार्थ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आसानी से इनको मिक्सअप करके लंग्स से होता हुआ ये लेकर के पहुंचा देगा आपके ट्रैकिया तक, से लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और अदर मटेरियल जो है वो ऑर्गेथीन साइकिल के थ्रू बॉडी में यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर हो जाते हैं। दिस इज ए सिंपल फिजियोलॉजी ऑफ, वेरी सिंपल फिजियोलॉजी ऑफ प्लाज्मा। मैंने प्लाज्मा के विषय में आपको बताया। सो माय डियर फ्रेंड, अब तो अभी तक का टॉपिक मैंने प्लाज्मा के विषय में दिया, अब जरा थोड़ा सा पॉइंट आप और सुन लें इसके विषय में। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको समझाना चाहूंगा कि अब ये जो ब्लड के विषय मैंने अभी आपको बताया, इस ब्लड के विषय में जो मैंने टॉपिक्स क्लियर किए, इस टॉपिक्स में अब हमारा टॉपिक आ रहा है ब्लड कॉर्पसेल्स। क्या आ रहा है? ब्लड कॉर्पसेल्स। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स, RBCS, ध्यान से नोट करेंगे, RBCS, WBCS and third platelets. RBCS, red blood corpuscle, not B cell, corpuscle। मैंने कई बार आपको लेक्चर में बताया है कि कॉर्पसेल क्यों कहा जाता है, इसको सेल क्यों नहीं कहा जाता। माय डियर फ्रेंड, सेल की जो डेफिनेशन है, सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, delimited semi-permeable membrane and capable of free from other living system, is self-reproductive। कोशिका जैविक क्रियाओं की इकाई है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है। अगर इसे किसी ऐसे जैविक तंत्रों से रहित कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो यह स्वतः जनन कर सकती है। यह कोशिका की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, सेल की वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बट इस डेफिनेशन को ना तो आरबीसी फॉलो करता है, ना तो डब्ल्यूबीसी फॉलो करता है, ना तो प्लेटलेट्स फॉलो करते हैं। तो रीजन क्या मिला हमें, क्या टॉपिक मिला हमें? आसानी पूर्वक हमको एक टॉपिक मिल गया, हम इन्हें सेल नहीं कह सकते, इनको क्या कह सकते हैं? कॉर्पसेल कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? कॉर्पसेल। यही रीजन होता है कि इन्हें सेल नहीं, क्योंकि ये सेल की डेफिनेशन के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इनको कॉर्पसेल का नाम दिया गया। तो कॉर्पसेल मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पसेल्स बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी पूरे ब्लड का लगभग 40 to 45% भाग ये रुधिराणुओं का होता है, रुधिराणुओं का, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आएंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आएंगे, जो पूरे बॉडी का 40 से लेकर के 45% पार्ट बनाते हैं, भाग बनाते हैं। और इसमें रुधिराणुओं की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो मैंने बता दिया, और इसमें उसी के साथ साथ हेमाटोक्रिट, ध्यान देंगे, हेमाटोक्रिट मान कहते हैं। इसी मान को जो पाया जा रहा है 40 to 45%, यही 40 to 45% हेमाटोक्रिट कहा जाता है। अगर कोई पूछता व्हाट आर हेमाटोक्रिट, आप बताएंगे हेमाटोक्रिट ए वैल्यू ऑफ blood corpuscles, those who are simply occur in our body for as like 40 to 45%, यह होता है हेमाटोक्रिट। इसको क्या बोलते हैं? हेमाटोक्रिट बोला जाता है। इसी हेमाटोक्रिट मैंने बताया कि लाल रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, और प्लेटलेट्स है। आरबीसी मीन्स लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और प्लेटलेट्स के भी विषय मैंने आपको बता दिया।
तो इस तरह से आपको इन सारे पॉइंट्स के विषय में जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब थोड़ा सा मैं आरबीसी के विषय में बताना चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये आरबीसी, ये ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी ये सबसे अधिक संख्या में बॉडी में पाए जाते हैं। आरबीसी सबसे अधिक संख्या में, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उभयावतल होता है। क्या होता है? उभयावतल होता है। अवतल उभयावतल, ध्यान देंगे। ये इस तरह से होते हैं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा आपके। ऐसे ये दो एक तारे इनके उभरे हुए और बीच में घसा हुआ उभयावतल, अगर ये पाए जा रहे हैं इस तरह से पाए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे तो गोलाकार हो गया, ये हमें उभयावतल होते हैं। आप उभयावतल में ले लीजिए इनको, ऐसे करके ऐसे करके। अब यहां पर आप देखेंगे कि उभयावतल में आ गए, और ये सेल के हो गए पार्ट, यहाँ पर ब्लड के पार्ट हो गए यहाँ पर। अब यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको इस विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, उभयावतल के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि मनुष्य के लाल रुधिराणुओं का जो डायमीटर होता है 7.7 से लेकर के 7.7 माइक्रोन होता है। 7 to 7.7 माइक्रोन होता है। और थिकनेस, मोटाई जो होती है 1 to 2 माइक्रोन होती है। 1 to 2 माइक्रोन होती है। इसके अंदर ध्यान दीजिएगा कि केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये सब आज अंगक जो होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण यह अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन धारण कर सकता है। दे हैव कैप्चर्ड टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को कहा गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आरबीसी को मैं बता रहा हूं, और आपको ध्यान देना है कि द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी इज द सिंपल वे, वेरी सिंपल वे, 120 to 127 डेज। 120 से लेकर के 127 दिनों का इनका जीवन काल होता है। किसका? आरबीसी का। और ध्यान से देखेंगे, आरबीसी का जीवन काल मैंने अभी आपको बताया, और इनकी संख्या लगभग 55 लाख पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। 55 lakhs per cubic millimeter. So many number of molecules of RBC are present in 1 cubic millimeter. So as like हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन मैंने बताया अभी आपको, जिसमें लगभग 28 करोड़ मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रोमैटिन होते हैं। स्ट्रोमैटिन, इनको बोला गया कि ये स्ट्रोमैटिन होते हैं। इस तरह से आपने देखा, जैसे मैंने पार्ट भी आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन का सिंपल सा फार्मूला आप देख सकते हैं जो आरबीसी में पाया जा रहा है। आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का फार्मूला C3032H4816 नाइट्रोजन 780 सल्फर 8 आयरन S4 Fe4। My dear friend, how many types of element? How many elements are occurring in the hemoglobin? Iron, sulfur, nitrogen, hydrogen and carbon. The majority of these types of element is present in hydrogen. मैक्सिमम नंबर में क्या है हमारा प्रेजेंट हुआ? हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ। उसके बाद क्या प्रेजेंट हुआ? कार्बन 3032, उसके बाद नाइट्रोजन 780, उसके बाद सल्फर 8, उसके बाद आयरन 4। सो माय डियर फ्रेंड, यदि ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाएगी, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो दे हैव कैन नॉट बी कैरीड द मैक्सिमम और मेजॉरिटी और द मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, and without oxygen our body have not been survived. The Reuben-Hasid and comment in 1940 they are simply be told a very little amount of oxygen it gives life for us. A very little amount of oxygen it gives life for us. ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा ही हमें क्या देती है? जीवन देती है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ऑक्सीजन
कि थोड़ी सी मात्रा जीवन देती तो ऑक्सीजन आया कहां से? ऑक्सीजन जो लिया जा रहा है वो आरबीसी के द्वारा लिया जा रहा है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वही हीम नाम का रंगा पदार्थ वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैप्चर करके आपके पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराने का फंक्शन क्रिएट करता है। दिस इज द मेन फीचर एंड फंक्शन ऑफ द आरबीसी। इस तरह से आपने देखा कि आरबीसी के विषय में हो गए। जो बॉडी टेम्परेचर को आरबीसी मेंटेन करती, ध्यान रखिएगा, आरबीसी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखती है। आरबीसी के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है कि बॉडी में पूरी तरह से ये एक्टिव बनाने का वर्क करती है, बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव बनाने का वर्क करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी के अंदर, आरबीसी के अंदर आपने देखा कि मैंने इसके निर्माण के विषय में बताया कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वह अस्थि मज्जा से होता है। कहां से होता है? अस्थि मज्जा से होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि न्यू ब्लड सेल्स का ओरिजिनेशन करना, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ऑक्सीजन को लेकर के दूसरे स्थानों पर जाना। इन सभी के फिगर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, अलीमुद्दीन शेख कादरी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं रेगुलर आपको यूट्यूब का वीडियो देता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करिए। और हॉलीडे के बाद आपका फिर से टेस्ट होना है। आप ध्यान देंगे कि मैं जो वीडियोस दे रहा हूं ये आप लोगों के स्टडी के लिए दे रहा हूं, आप लोगों को कोर्स के लिए दे रहा हूं। आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में न आए, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9919529090 पर आप लोग कॉल करके आसानी से या मैसेज करके आसानी से या व्हाट्सएप करके आसानी से आप लोग इससे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आरबीसी के विषय में बता दिया। अब बचा है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज मैंने 2 पार्ट बताए। पहला पार्ट मैंने बताया कि जो है ये लिम्फ क्या होता है, और दूसरा पार्ट मैंने बताया कि आरबीसी क्या होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इन दोनों पार्टों को बताने के बाद हमारे अगले टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो अपने अगले यूट्यूब वीडियोस पर अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं सबका जो है क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, तो दूंगा मैं। और अभी मेरे क्वेश्चन पेपर की तलाश जारी है। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर ले आकर के अपलोड कर दूंगा। और आप सभी लोग उन्हीं क्वेश्चन पेपर को रीड करिएगा, बेसिकली क्लास 10th और क्लास 12th। और मैं 9th और 11th का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे विदा ले रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।